Hello everyone, here this is Deepti. Welcome to my BST study zone. Now today we are going to start our next chapter, chapter number 3, public, private and global enterprises. Okay. In the previous lecture we have just discussed about the chapter 1 and 2, in which we have already learned about the nature and purpose of business and the forms of business organization. Okay. Now come to the next one, the public, private and global enterprises. Before starting this, we have to be just main thing we have to be discussing this chapter is, before starting this I am saying कि what is the role of public, private and global enterprises. First we go through the private. अगर हम प्राइवेट को देखें तो प्राइवेट का इसमें कोई भी रोल नहीं है. देयर इज़ नो एनी रोल ऑफ प्राइवेट इन दिस, in our today discussion, because this private is totally related to the sole proprietorship, HUF, Hindu Undivided Family, cooperative society, so partnership, all these are just come into the private sector. Today we have to specially talk about the public sector. हमें public sector के बारे में बात करना है कि public sector होता क्या है. प्राइवेट सेक्टर का भी हम लोग थोड़ी डिस्कशन कर ही लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर होता क्या है. फर्स्ट थिंग इज़ कि प्राइवेट सेक्टर इज़ द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज़ रन बाय इंडिविजुअल्स. हम इसको बोल सकते हैं ये हमारे कंट्री का एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम को ये हैंडल करता है दैट इज़ रन बाय इंडिविजुअल, जो कि एक इंडिविजुअल एक कंपनीज के थ्रू उस चीज़ को इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. ओके, rather than the government. Most private sector organizations are run with the intention of making profit. Okay, it is also we all know well known about this कि जो private enterprises होते हैं, private sector होते हैं, उसमें जो भी वर्कर काम, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, अपनी जो भी कंपनी ओपन करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज पब्लिक सेक्टर. आपका क्या होता है पब्लिक सेक्टर? देखो, प्राइवेट चीज़ आपका बोल सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर आपका इंडिविजुअल से रिलेटेड है. वी ऑल आर द इंडिविजुअल प्लेइंग द रोल इन द प्राइवेट कंपनीज. ओके, बट व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक? Public sector is totally belong to the government. Public sector is the part of a country economy which is controlled or supported financially by the government. Means आप बोल सकते हो फाइनेंशियली वर्ड आपका क्या बता रहा है, गवर्नमेंट से उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है. एक तरीके से जो भी उसे कंट्रोल और मैनेजमेंट होती है गवर्नमेंट के इन हैंड होती है. ओके, नाउ आफ्टर दिस first we go this one, introduction. What is the introduction? We can take it in the example. सोमा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th was reading a newspaper. मीन्स यहाँ पे एक लड़की है सोमा जो कि 11th में एक न्यूज़पेपर रीड करती है. ठीक है. There was the news items that the government planned to disinvest its shares in some personal sector units as they were incurring heavy losses. At the same time, it was written that some private companies and multinational companies were earning so much of profits. देखो, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आप एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की. जो प्राइवेट सेक्टर होता है इट्स टोटली रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स और द कंपनीज. बट जो पब्लिक सेक्टर होता है, आप अपने दिमाग में एक जगह फिक्स कर लो इस चीज़ को अपने माइंड में कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर होता है टोटली जो वो होता है गवर्नमेंट ओन और कंट्रोल होता है, उनके थ्रू ही सारी चीज़ें होती हैं. पब्लिक सेक्टर मीन्स इट इज़ टोटली और wholly controlled or supported financially by the government. But private sector में it is totally controlled and run by the individual and the companies. Okay, so the Soma just read the newspaper. Then after this it is given the newspaper. There was a news that item that government plan to disinvest. उसमें वो ये पढ़ती है कि गवर्नमेंट प्लान करती है कि जो भी उसका अभी लॉसेस इनकर हुआ है उनके पूरे लास्ट ईयर को लेके, तो वो चाहते हैं उनके शेयर्स को डिसइन्वेस्ट करें किसी इन सम PSUs मीन्स व्हाट, पर्सनल सेक्टर यूनिट्स में डिसइन्वेस्ट करें उस शेयर्स को, क्योंकि गवर्नमेंट हैवी लॉसेस से सफ़र की है. ओके, बट एट द सेम टाइम क्या होता है, इट वॉज रिटन दैट सम प्राइवेट कंपनीज, तब तक उसे पता चलता है कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो उसी समय बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करती हैं. आफ्टर दिस
It is also given the Maruti Suzuki Limited, which a joint venture of Maruti company and Suzuki company of Japan was launching. Maruti Suzuki Limited, these are the two different name. ये कैसे फॉर्म हुआ? मारुति इज द अदर थिंग एंड सुजुकी इज जस्ट कंसर्न विद द अदर थिंग. इट मीन्स वन, मारुति आपका अलग चीज़, सुजुकी लिमिटेड अलग चीज़ है. आप बोल सकते हो कि जॉइंट वेंचर का नाम दिया गया. पहली बात तो आपको इसका मतलब जानना होगा कि जॉइंट वेंचर होता क्या है. जॉइंट वेंचर इज अ बिजनेस और प्रोजेक्ट इन विच 2 और मोर कंपनीज और इंडिविजुअल्स हैव इन्वेस्टेड. आप बोल सकते हो जॉइंट वेंचर एक ऐसा होता है, एक बिजनेस का ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे दो कंपनीज मिलके, दो इंडिविजुअल मिलके किसी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए, किसी एक चीज काम को साथ में करने के लिए अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं. तो जब हम लोगों ने मारुति कंपनी, सुजुकी कंपनी को जापान में लॉन्च किया, तो दे आर जस्ट लॉन्चिंग अ न्यू कार इन द मार्केट. तो मारुति सुजुकी लिमिटेड विच अ जॉइंट वेंचर, किसका जॉइंट वेंचर है? मारुति कंपनी एंड सुजुकी कंपनी ऑफ जापान. वो उसने क्या लॉन्च किया? न्यू कार इन द मार्केट. शी वॉज क्यूरियस, वो बहुत एक्साइटेड हो गया, उसको बहुत अंदर से रहा कि टू नो अबाउट, उस चीज़ के बारे में जानने की इच्छा हुई, टू नो अबाउट दीज आइटम्स लाइक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जॉइंट वेंचर एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें होती क्या हैं. शी वॉज जस्ट रीडिंग इन द न्यूज़पेपर, बट वो न्यूज़पेपर में रीड करते करते साथ ये भी देखी कि ये जो मैं वर्ड्स पढ़ रही हूँ, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जॉइंट वेंचर, ये होता क्या है. उसको इस चीज़ की कन्फ्यूज़न थी. हम लोग रीड करते हैं तो इट इज़ ओके, हम कंटिन्यूसली रीड करते हैं, बट कभी कभी हम रीड करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें उस चीज़ का सेंटेंस है तो मतलब समझ में आता है, बट अगर स्पेसिफिकली उस वर्ड पे हम जाएँ तो वी कैन नॉट क्लियर अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड व्हाट दैट वर्ड्स ट्राइंग टू डिफाइन अस. ओके, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि उस वर्ड का हमें डिफाइन क्या करना चाहता है, उस वर्ड का मतलब क्या होता है. जस्ट लाइक द सोमा विल बी कन्फ्यूज इन दिस. PSUS क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है. ओके, लेट वी डिस्कस. पब्लिक सेक्टर यूनिट हम लोगों ने बोल दिया, जॉइंट वेंचर का भी आपको पता चल गया जॉइंट वेंचर क्या होते हैं. ओके, सोमा के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप कंफ्यूज मत होना कि हम लोगों ने तो अभी प्रीवियस में ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, अभी अचानक से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोबारा कैसे आ गया. डोंट बी कन्फ्यूज्ड. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखो, आप एक चीज़ जान जाओ कि कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो गवर्नमेंट भी हैंडल करती है, कुछ ऐसे भी होते हैं सेक्टर जो इंडिविजुअल, कोई कंपनीज कोई इंडिविजुअली उस चीज़ को हैंडल करता है. तो प्राइवेट सेक्टर में आपके सारे आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं प्राइवेट सेक्टर. बट व्हाट अबाउट द पब्लिक सेक्टर. हमारे लिए तो ये चीज़ न्यू है कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है. प्राइवेट सेक्टर तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है चैप्टर 2 में, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, सारी चीज़ें पढ़ सकती है प्राइवेट कंपनीज़ के बारे में. ओके, बट पब्लिक सेक्टर स्पेशली हम लोग का होता क्या है, पब्लिक सेक्टर को समझने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द टॉपिक्स गिवन बिलो. पब्लिक सेक्टर में आपके 3 आते हैं, इसमें आपके जो 3 गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट है आपका A1 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी. डिपार्टमेंट फर्स्ट वी हैव टू गो विद द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड आफ्टर वी जस्ट प्रोसीड टू द B&C टॉपिक. ओके, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस departmental undertaking and its features. Departmental undertaking and its features समझने से पहले we have to specially go through the which one. Especially we just go through the कि departmental undertaking होता क्या है. मैंने आपको ये चीज़ पहले भी क्लियर किया है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो फर्स्टली आपको जानना चाहिए कि जो हेडिंग है उसका मेन मीनिंग होता क्या है. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स यू कैन से कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट इन फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर. जब पब्लिक सेक्टर, आप बोल सकते हो कि जब पब्लिक सेक्टर अराइज हुआ था तो जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई थी वो सबसे पहले कौन सी आई थी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आई थी पब्लिक सेक्टर की. इसलिए इसको एक ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. अब ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म से आप समझ सकते हो कि आप जब इससे कोई चीज़ रिलेटेड बात करोगे ना तो शायद कितनी मॉडर्नाइजेशन हो गई हो हमारे कंट्री में, सारी चीज़ें बदल गई हों. बट जब भी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और यू कैन से द ट्रेडिशनल टच वी आर जस्ट फील फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो फर्स्ट इट इज़ गिवन हियर कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होता है क्या. तो यू कैन से इट दैट दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. इट्स ऑल फंक्शन अंडर द ओवल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट. अब देखो, जो इसका कंट्रोल होता है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है. ओके, आफ्टर दिस यू कैन से
कि आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में एग्जांपल ले सकते हो कि आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आ सकते हैं रेलवे डिपार्टमेंट, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आते हैं। ओके, बिकॉज इट इज़ टोटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि किससे रेगुलेट होता है, टोटली जस्ट रेगुलेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, तो फर्स्ट यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट द एग्जांपल्स, मैंने एग्जांपल बता दिया है कि रेलवे आ जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग आ जाएगा, डिफेंस आ जाएगा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ही चलती हैं। ओके, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आप समझ सकते हो, स्पीड पोस्ट करते जो भी चीज़ें उनके यहाँ चलती हैं गवर्नमेंट के थ्रू ही चलती हैं। सारी पेमेंट फंड्स जो अवेलेबल होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू ही आती हैं वहाँ पे, और जो भी इनकी रेवेन्यू होती है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाती है, मीन्स उनके खजाने में जाती है। ओके, नाउ कम टू दिस वन, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल सेंट्रल स्टेट। अब पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल सेंट्रल स्टेट मैंने अभी बताया कि डिपार्टमेंटल, एक तरीके से आप इसको फीचर्स ले लो, ठीक है। पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट एक तरीके से आप इसका फीचर ले लो कि दे आर अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज़ नो एनी सेपरेट लीगल एंटिटी। आप बोल सकते हो कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया था तो ये टोटली गवर्नमेंट बेस्ड था, इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था, उसकी कोई अलग से पहचान नहीं थी। ओके, ये गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, इट्स टोटली जस्ट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ टोटली कंट्रोल ऑन समटाइम्स बाय सेंट्रल और समटाइम्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री मीन्स व्हाट? मिनिस्ट्री मीन्स आपको जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि मिनिस्ट्री का मतलब होता क्या है। देखो, डिफरेंट डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन हैज़ बीन मेड बाय गवर्नमेंट कॉल मिनिस्ट्री। जैसे गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट डूइंग और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनी वर्क, गवर्नमेंट जो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, चाहे वो एग्रीकल्चर वर्क हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स वर्क हो, चाहे वो कॉमर्स को मैनेज करने की बात हो या कोई भी चीज़ हो, बट गवर्नमेंट हर जगह अपनी अपनी हर जगह अपना अपना हर जगह वो पहुंच नहीं सकती, सारी चीज़ को जजमेंट एक साथ नहीं कर सकती है, इसलिए उसने हर अलग अलग फील्ड में, एग्रीकल्चर में, कॉमर्स में, सारी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग स्पेशलाइजेशन को रखा है, उसको हम मिनिस्ट्री कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर वर्क फॉर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ओके, फॉर यू कैन से द ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, जो ह्यूमन रिसोर्स वर्क को देखे तो उनका एक अलग मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट है, आपका अलग अलग कोई चीज़ भी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, सबके जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं, जो उनकी मिनिस्ट्री होती हैं, मिनिस्ट्रीज होते हैं, दे ऑलरेडी इज मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो भी रहते हैं उसके स्पेशलाइज्ड को वो कहते हैं मिनिस्ट्री। मीन्स उसका वो हेड, उसका वो कंट्रोल, सारा डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास रहेगा? मिनिस्ट्री के पास। फंड्स कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ट्रेजरी मीन्स, डोंट बी कंफ्यूज, ट्रेजरी मीन्स आप बोल सकते हो खजाना, जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी रहता है वो सारे फंड्स कहाँ से आते हैं? डायरेक्ट गवर्नमेंट के ट्रेजरी से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट को ट्रेजरी आप किस फॉर्म में ले सकते हो कि जो भी पब्लिक सेक्टर में जो भी इनकम होती है, जो भी रेवेन्यू रहती है, वो ट्रेजरी, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ही जाता है। तो गवर्नमेंट उससे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि सोसाइटी के कैसे उससे वेलफेयर किया जा सके। ओके, एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब जो भी एम्प्लॉयज़, जैसे पब्लिक सेक्टर में कोई भी काम हो रहा है, चाहे वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट का हो, सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप बोल सकते हो कि वो सारे स्टाफ होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। ओके, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कोई भी स्टाफ हो उनको एज अ सिविल सर्वेंट्स माना जाता है। जो इनके स्टाफ होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स या गवर्नमेंट सर्वेंट्स बोलते हैं उनको, कि मीन्स ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इनकी सरकारी नौकरी है। दिस वे दे आर जस्ट टेकिंग देयर नेम्स। तो इनको एक तरह से एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ माना जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, किसी बैंक में, किसी गवर्नमेंट बैंक में जॉब करता है, तो ये वी आर जस्ट टेकिंग एज ए एम्प्लॉय ऑफ दैट गवर्नमेंट। आप उसे बोल नहीं सकते वो प्राइवेट सेक्टर का है भाई। अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है तो ये जस्ट फोकसिंग ऑन दैट पर्सन ओनली थ्रू द गवर्नमेंट, कि भाई ये गवर्नमेंट का है, सरकारी की नौकरी इसकी लगी। यू कांट कंपेयर इट विद द प्राइवेट सेक्टर। ओके, so these are the employees or government employees I have explained here. Examples में we have taken railways, okay, defense and post and telegraphs. We have already discussed about this. मैंने बताया अभी इसके बारे में। Come to the next one, merits. What is the merits? अब merits का मैंने मतलब बताया है आपको कि merits means कुछ अच्छाइयाँ वो होती हैं किसी चीज़ में, चाहे वो कंपनी हो, चाहे किसी एक पर्सन की बात भी करो तो उसमें कुछ अच्छाई भी होती है, उसमें कुछ बुराई भी होती है। एज अ कंपनी रीज़न हम लोग देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर में कुछ उसकी अच्छाइयाँ भी, कुछ उसकी बुराइयाँ भी हैं। ओके, तो फर्स्ट मेरिट इज़ गिवन है इफेक्टिव कंट्रोल। अब नाउ यू कैन से कि इफेक्टिव कंट्रोल आप क्या बोल सकते हो? अगर आप किसी गवर्नमेंट के थ्रू कोई काम करते हो, किसी गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हो, तो आपको एक गवर्नमेंट का
पर्सन माना जाएगा ना कि आप एक सरकारी नौकरी करते हो या डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, तो वो कंट्रोल जो रहता है वो किसके हाथ में रहता है? ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के ही हाथ में होगा। तो द थिंग इज यू कांट डू एनीथिंग ऑन योर ओन बेसिस, यू हैव टू एग्री विथ ऑल द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी चीज़ आप अपने बेसिस पे नहीं कर सकते हो, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हो, यू टोटली जस्ट कंट्रोल एंड गवर्न बाय द गवर्नमेंट। ओके, if you are allocating all the things or to use resources for managing, they will always a head over there। तो you can say कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो गवर्नमेंट के नाम पे आपको वहाँ पे एक हेड भी अवेलेबल कराया जाएगा जिस पे आपका पूरा इफेक्टिव कंट्रोल होगा। आपके सारी चीज़ों को वो अपने माइंड में रखेगा, आप कब कौन सी चीज़ गलत करो, आपसे किस चीज़ की गलती हुई। तो आपका हेड, आपका जो ओनर होगा, जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होगा स्पेशली फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको सारी चीज़ वो कंट्रोल करेगा, सारी चीज़ को जो भी होगा उसे मैनेज करके समझाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को आप इस चीज़ से ना लो, पब्लिक मीन्स तो आप जान जाओ क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी को आप बोल सकते हो कि कोई भी अगर पब्लिक सेक्टर में पर्सन काम करता है तो वो आंसरेबल रहता है सारे भी इश्यूज़ का, सारी चीज़ें जो उसने गलती की हो, चाहे वो किसी फाइल को लेके गलती की हो, चाहे वो किसी फंड्स का मिसयूज़ किया हो गवर्नमेंट के थ्रू जो आया हो, कोई भी चीज़, तो उसका वो आंसरेबल रहेगा। उसको उस चीज़ का आंसर देना होगा कि उससे इस चीज़ की गलती क्यों हुई। दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन वर्क। उसको अपने हर काम का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। इफ़ देर गेटिंग रिसोर्सेज फंड्स, अगर उसको कोई भी रिसोर्सेज फंड्स मिलता है, इफ़ देर एनी इशूज़ रिलेटेड टू ऑल दीज, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फंड्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो इफ़ देर आर एनी इशूज़, अगर उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो रिलेटेड टू ऑल दीज, दे आर द आंसरेबल फॉर दैट। उस चीज़ के लिए वो आंसरेबल रहेगा, उस चीज़ का बताएगा क्या रीज़न है, और वो अपनी सारी जो भी डाउट्स रहेगा उस चीज़ को क्लियर करेगा। बट हाँ, वो अपनी तरफ से पूरी क्लैरिफिकेशन देगा कि उसने कहाँ और किस वजह से वो फॉल्ट की। ओके, ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एनी इशूज डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, बिकॉज अगर कोई ब्लेम या कोई भी बदनामी होती है, कोई भी एलिगेशन उस बंदे पे लगता है, तो जो भी सारी डिस्कशन होती हैं, आप स्पेशलाइज आप इस चीज़ को माइंड में रखो कि जो भी गवर्नमेंट इशू रहता है वो स्पेशली पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं। ओके, आप वी कैन कॉल इट अ लोकसभा एंड राज्यसभा। सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ डिस्कस होती हैं। उससे हमारा क्या रिजल्ट आउट होता है, फिर कैसे ट्रीट करना चाहिए आगे, कैसे मैनेज करना चाहिए आगे, उसके बाद गवर्नमेंट सोचती है। बट जो भी इश्यूज़ रहते हैं गवर्नमेंट के फंड्स को लेके, रिसोर्सेज को लेके, सारे डिस्कशन, सारे डाउट्स जो पार्लियामेंट में ही क्लियर होते हैं। पार्लियामेंट का बहुत ही अच्छा रोल है अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर से जुड़ा है तो। ओके, सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अब सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी आप क्या बोल सकते हो? हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए मिनिस्ट्री आप बोल सकते हो कि अवेलेबल है। ओके, नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, ये किस चीज़ से कंसर्न करता है? दिस फॉर्म इज मोर सुटेबल सिंस इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। मीन्स अगर वो किसी भी फील्ड में है, चाहे एग्रीकल्चर को ले लो, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्रीज़ को ले लो, तो भाई टोटली उसका जो भी कंट्रोल रहेगा वो उसकी एक सिक्योरिटी रहेगी उस बंदे की, कि जो उसका सुपरवाइज़र है, जो भी उसका हेड है, टोटली उस चीज़ को कंट्रोल करे और वही सुटेबल रहेगा उसी फील्ड में जिस चीज़ के लिए उसको रखा गया, जिस स्पेशलाइजेशन पर्पज़ के लिए उसको उस चीज़ के लिए रखा गया। एग्रीकल्चर का जो पर्सन रहेगा उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज रहेगी, वो एक्सपर्टाइज वे में उस चीज़ को हैंडल कर लेगा। और दूसरे जो ह्यूमन रिसोर्स वर्क पे ज़्यादा अपना फोकस रख रहे हैं वो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होगा। तो जस्ट टोटली सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। वो एक नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है कि दे आर जस्ट कंसर्न, इट इज़ जस्ट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। Is it clear? Now come to the next one, demerits. Now we have already discussed about the merits. Now we just go to the demerits of this. What are the demerits of this? Demerits आप अगर आप बोलो तो lack of flexibility. Lack means तो कमी होती है, flexibility आप जान जाओ कि जिसमें कोई चेंज ना हो, जिसमें हमें कोई चेंज देखने की कमी मिले। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं होती है इसमें। All the control and management are handled by their head in any situation। जो भी कंट्रोल, जो भी मैनेजमेंट होता है, जो उसके हेड होते हैं वही सारी चीज़ को हैंडल करते हैं, चाहे वो कोई भी सिचुएशन होती है। दे कांट यूज़ देयर माइंड, वो अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। जो गवर्नमेंट चाहती है वही करना होगा उन्हें। फ्रॉम ऑल द
duties, all the rules, all the regulation, all the processing system will be totally defined by the government. They can't use their mind whenever the government interfere in this. जब भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा, आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हो तो वो आपकी ड्यूटी है या आप उसमें अपना इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं दिखाओगे तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप अपने मन मुताबिक कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब डिले इन डिसीजन मेकिंग आपका क्या होगा? डिले इन डिसीजन मेकिंग का यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोल है। आपको बता दूँ कि पब्लिक, अभी तो हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एक लेवल पे आते हो कि टॉप है, लोअर है, एक वन स्टेप आप नीचे आते हो। ओके, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कोई भी डिसीज़न आप ले रहे हो तो उसमें डिले होना ही है। पब्लिक सेक्टर में आपका कोई भी एक पर्सन लायबल नहीं रहता सारी चीज़ों को लेके, वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं जो हर चीज़ का डिसीजन लेते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, किसी डिसीजन मेकिंग किसी चीज़ को इफेक्टिवली उस चीज़ को डिसीजन लेना, इंस्टेंट डिसीजन लेना, कोई भी चीज़ वो पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से सुपरवाइज़र होते हैं, बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंटल के हेड होते हैं, तो सारी चीज़ें जब डिस्कस होती हैं तो इन दिस नॉट ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीजन बिकॉज देर वर ऑल्सो सुपरियरिटी एंड डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र, जो बहुत लेवल्स हैं जो चेंजेस के लिए कोई भी डिसीजन या कोई भी डिसीजन लेने में, किसी भी चीज़ में चेंजेस करने के लिए एक टाइम टेकिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। किसी भी चीज़ को हमें करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग आप बोल सकते हो कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है ये कोई भी डिसीजन पे हम लोग को पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर लेवल पे कोई ना कोई रहता है। और जब गवर्नमेंट की बात आती है तो ये सारी चीज़ों को एक वन बाय वन प्रोसेस के थ्रू ही लाते हैं। एंड जब सारी चीज़ें एक जगह अलग अलग डिपार्टमेंट की फाइनल हो जाती हैं तो जो भी डिस्कशन होती हैं अलग अलग फाइनल की, चाहे वो फंड से रिलेटेड हो, चाहे उनके अमाउंट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं। चाहे वो बजट से रिलेटेड हो कि बजट्स में से उनको क्या कितने अमाउंट देने रेलवे में, कितने अमाउंट देने ब्रॉडकास्ट में, सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। जब हमारा बजट निकलता है फरवरी में तो उस एनुअल बजट के थ्रू गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसको कितना देना है, क्या करना है। ये जो सारे भी डिसीजन होते हैं ना, जो भी वो डिसाइड करते हैं ना, वो उनका सारा पार्लियामेंट में होता है। और जब पार्लियामेंट से जो भी रिजल्ट आउट होता है ना, उसके बेस पे सारे आगे के डिसीजन लेते हैं। तो आप बोल सकते हो सारी इतनी प्रोसेस है इसमें, तो ऑब्वियसली इट कैन टेक मोर टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, रेड टेपिस। अब रेड टेपिस में क्या मतलब है आप समझ जाओ। रेड टेपिस मीन्स देयर इज अ रेड टेपिस में डे टू डे ऑपरेशन एंड नो एक्शन कैन बी टेक, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता जब तक इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी। मीन्स एक प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए इसमें, कि एक प्रोसेस होना चाहिए कि वन बाय वन वो चीज़ें हो। ओके, कोई भी काम करेंगे तो जल्दी होने वाला भी हो, तो इस चीज़ रेड टेपिस में के थ्रू आपका ये होता है कि वो चीज़ में देरी हो ही जाती है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना कि सुपरियरिटी रहती है तो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, तो सुपरवाइज़र होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें आपका टाइम लग ही जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, इसमें आप एक तरीके से और बोल सकते हो, कभी कभी कुछ आपको ब्राइबरी टाइप भी दिखेंगे कि दिस ऑफरिंग ब्राइबरी मीन्स BRI, ब्राइबरी मीन्स ऑफरिंग समथिंग डिजायरेबल और समथिंग ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर सेटिंग समथिंग इन रिटर्न। जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, यू कैन टेक द एग्जांपल, जब भी आप समझ लो अपने PF के लिए जा रहे हो, प्रोविडेंट फंड के लिए जा रहे हो कि मुझे पैसा निकालना है, तो आप अगर एक बार में जाओगे तो वो आपका काम नहीं करेंगे। दैट टोटली जस्ट फील इट रिलैक्स कि आप कल ये साइन करना तो आप उनकी साइन लेके आना, तो आप मुझे कुछ चाय पानी दो या आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ दो, जस्ट इन द वे ऑफ द ब्राइबरी आप बोल सकते हो। फीस तो चलो इज़ द अदर थिंग, बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्राइबरी है। कोई भी काम निकलवाने के लिए अगर आपका बहुत लंबे समय के लिए आपका काम नहीं हो पा रहा, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो तो वो एक तरीके से ब्राइबरी आप बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ ऑफर करने के लिए वो आपसे कुछ बदले में चाहते हैं। ओके, तो यू कैन टेक इट इन द रेड टेपिस में, इस फॉर्म से भी आप ले सकते हो और इस फॉर्म से भी ले सकते हो कि नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी। जो प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी होती है, ओनर हेड, उसके ऊपर जो सुपरवाइज़र है, फिर जो उसका डिपार्टमेंटल का हेड है, सारी चीज़ें जो होती हैं वन बाय वन अगर एक अथॉरिटी चैनल्स के थ्रू होंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से कैरी ऑन हो पाएंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का क्या रोल है, आप मेरे को बताओ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का क्या रोल सकता है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग मिनिस्ट्री आप बोल सकते हो, सबका अपना अलग अलग रोल है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का क्या रोल हो सकता है इसमें।
फर्स्ट थिंग इज द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मीन्स, कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप ले सकते हो कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो मिनिस्ट्री आपकी अलग अलग होती है, सारी चीज़ों की आप बोल सकते हो कि अलग अलग, जैसे एग्रीकल्चर का अलग है तो वो ह्यूमन रिसोर्स वर्क का अलग, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा ही। आप कोई भी चीज़ को ले लो, उनका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है सारी चीज़ों को, वो उसमें इतने स्पेशलाइज्ड हैं कि नहीं, सारी सिचुएशन अच्छे से वो हैंडल कर पा रहा है कि नहीं, तो इसमें इंटरफेरेंस ज़रूर रहता है। जहाँ गवर्नमेंट की बात होती है वहाँ इंटरफेरेंस का रोल रहता ही है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो अलग अलग जो डिपार्टमेंट उन्होंने डिवाइड किया रहता है वो सारी सिचुएशन उसमें आनी है, ऐसा होगा ही। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कम टू द नेक्स्ट वन, अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब आपका यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज मीन्स वॉट एवर द प्रॉफिट दे आर जनरेटिंग, कोई भी अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है कोई भी प्रॉफिट जनरेट करती है, दे कांट यूज ऑन अप्लाई फॉर देयर ओन बेनिफिट, वो अपने फ़ायदे के लिए उस इनकम को, उस बेनिफिट को यूज़ नहीं कर सकते, और फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट, और किसी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या उसके प्रोडक्टिविटी के लिए या उसके एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो भी उसकी मनी होती है, ऑल मनी डिपॉजिटेड इनटू द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है वो सारी जो भी इनकम होती है वो उसमें ही लगा देते हैं। कोई भी वो अपना पर्सनल, किसी पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें वो काम करते हैं, वो उसमें अपना टोटल अमाउंट, जो भी उनकी इनकम होती है, जो भी उनको बेनिफिट होता है, वो उसमें नहीं लगा सकते विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि दिस पब्लिक सेक्टर इज टोटली गवर्नड बाय गवर्नमेंट, not the company, not handled by the individual, not handled by the companies, totally just governed by the government or owned and controlled by the government. Is it clear? Now I think you have just understand all the points we have discussed. Now in the next one we will proceed to our next one, statutory corporation, the next lecture, not today, in the next lecture. And listen, one more thing, if you are just write down all these points somewhere, then it will be very beneficial for your examination. और नेक्स्ट थिंग कि अगर आपको मेरे टॉपिक के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको खुद आ रही हो, आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हों गवर्नमेंट को लेके कि एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में और भी चीज़ें आ सकती हैं, तो आप बुकिश लैंग्वेज तो बिल्कुल ही मत लिखना। आप बिजनेस में जितना अपने वर्ड्स में लिखोगे, अपने पॉइंट्स को लेके लिखोगे, उतना ही आपका बेनिफिट होगा, उतनी ही आपके मार्क्स अच्छे गेन कर पाओगे एग्ज़ाम में। इज इट क्लियर? So today we have just discussed about the departmental undertakings. In the next video we will discuss about the statutory corporation. Is it clear to all? So thank you class for today. And one more thing I want to say कि I will just show you important question related to this chapter, some notes. इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको कोई नोट्स दे दूँगी या कुछ स्मॉल डेफिनेशन जो आपको नहीं आ रहे होंगे कि PSU क्या होता है, तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, इससे कुछ डेफिनेशन मैं आपको बीच में इसमें दिखाती रहूँगी। अगर आप उस चीज़ को स्टॉप करके कहीं नोट डाउन कर लोगे, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू ऑल। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।